Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Today we will discuss about some of the other important concept in political science. Already we discuss in our other class related to the political theory syllabus. Again, we will see because these are the basic important concept of state and concept of government. What is the difference between the state and government? What are the forms of government? What are the elements? You know the elements, but what are the forms of government? What is the difference? Parliamentary government, presidential government, unitary government. There are some important forms, so you should know about it, because if you learn any political system, these forms you definitely find in all kind of syllabus. That's why it is important to know the forms of government. You already known or aware about the concept of state, but again it is important concept. That's why we will discuss today in our last value added class. After that, tomorrow I will send you again Google form. Today at night I will send another Google form, and after the feedback form you will get the certificate. And you also mention your opinion about the class and what do you need. It should be also mentioned in the feedback form. Then we will organize according to the your need. The concept of state and government. स्टेट यानी क्या, सरकार यानी क्या. मराठी मीडियमचे आहेत का इथे कोणी? So the concept of state and government. State, a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, having a government of its own, to which the great body of inhabitants renders obedience, and enjoying freedom from external control. What is state? Is the basic difference. Just see in the definition, the existence of government we will see under the state. ये जो गवर्नमेंट और स्टेट में मैं जो अभी आपको बता रहा था कि क्या डिफरेंस क्या है, तो डेफिनेशन में ये दिया गया है. विदाउट existence of state you cannot find the existence of government, because under the state गवर्नमेंट इज फॉर्म. ये बहुत जरूरी है. इसलिए डेफिनेशन यदि प्रॉपर अच्छी तरह से पढ़ ली तो आपको गवर्नमेंट और स्टेट में ब्रॉडर कंसेप्ट कौन सी है या लार्जर कंसेप्ट कौन सी है. तो स्टेट ये लार्जर कंसेप्ट है. स्टेट के अंडर गवर्नमेंट है. जैसे अपन बोलते हैं ना कि मेरा खुद का एग्जिस्टेंस है, लेकिन मेरा एग्जिस्टेंस मेरे जो फैमिली मेंबर्स जो है, मेरे से जो बड़े मेरे पिताजी है, उनके ऊपर मेरा एग्जिस्टेंस है, फिर उनका एग्जिस्टेंस उनके पिताजी के ऊपर. तो ये वैसा ही है. स्टेट गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस स्टेट के ऊपर है. यदि स्टेट नहीं है तो गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस भी नहीं रहता है. इसलिए अभी ये डेफिनेशन जब अपन पढ़ते हैं तभी ये सब डिफरेंस भी पता चलता है. अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स मोर और लेस, जरूरी नहीं है कितने नंबर ऑफ पर्सन्स है.
ज्यादा भी रह सकते, कम भी रह सकते. Permanently occupying a definite portion of territory. Permanency is the very important part. Means without permanency, you cannot create the state. If a person more or less permanently occupying definite portion of territory, means वो जो जहां पे वो रह रहे हैं उन्होंने वो परमानेंटली ऑक्यूपाई कर लिया है उसको. हैविंग अ गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन, तो वो उनका खुद का गवर्नमेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हैविंग अ गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन टू विच द ग्रेट बॉडी ऑफ इनहैबिटेंट्स रेंडर्स ओबीडियंस. कि उनकी खुद की गवर्नमेंट किसके लिए, कि जो रहने वाले हैं वहां पे उनके तरफ से प्रॉपर रूल एंड लॉ का पालन करवाने के लिए. एंड लास्ट, एंजॉइंग फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. उसके बाद जो फ्रीडम उनको मिलने वाला है, जो एंजॉय करने वाले हैं, वो इट शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल, यानी बाह्य जो है, जो बाहर का कोई है उससे भी उनकी सुरक्षा करेंगे. वो जो स्टेट रहेगा, जो गवर्नमेंट रहेगा, उसको कहते हैं स्टेट. ये बेसिक डेफिनेशन स्टेट की है कि कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्युपाइंग पर्टिकुलर टेरिटरी, हैविंग इट्स ओन गवर्नमेंट. ये देखो 3-4 पार्ट में अपन ख्याल में रख सकते हैं अपने. डेफिनेट टेरिटरी, परमानेंटली ऑक्युपाइंग, having its own government, and last, enjoying freedom from external control. तो ये 4 पार्ट में डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाती है. एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर क्लास. पीपल, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी. मास ऑफ पॉपुलेशन लिविंग विद इन द स्टेट. व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस इन द डेफिनेशन, दैट more or less people permanently occupying. It means people is the first part of or first element of the state. If such kind of if any in MCQ, if they ask that what is the first element of the state, the people is the first element of the state. Means after that, territory, permanently occupying definite territory. First is the mass population living within the state. Second, territory, fixed portion of the surface of the earth inhabited by the people of the state. Particular fixed portion, जहां पे वो सब रह रहे हैं. पीपल, उसके बाद टेरिटरी, और उसके बाद थर्ड है वो गवर्नमेंट, एजेंसी through which the will of the state is formulated, expressed and carried out. Government means क्या? It is an agency of the state through which the will of the state. Will of the state means क्या? The will of the people is formulated, means to form, then express and carried out. आप वो तैयार भी करोगे उसको मतलब उसकी एक प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा और वो प्रॉपर हिसाब से रखा भी जाएगा. और वो कौन रखता है? इट इज अ गवर्नमेंट. इसलिए उसको स्टेट की एजेंसी कहा गया है. बट इट इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट. सॉवरेनिटी, द सुपर पावर ऑफ द स्टेट टू कमांड एंड एनफोर्स ओबीडियंस. व्हाट वी already discussed in the definition. This one, enjoying freedom from external control. This is the duty of, this is the function of sovereignty. The superpower of the state to command and enforce obedience. Superpower of the state means no one
no one is above that superpower. Everyone should be under that superpower. Even external power cannot interfere, cannot enforce their rules and regulations or other things. If these four elements we find that, then definitely it is called a state. समझ में आया? Yes, sir. State versus government. State is the principal, गवर्नमेंट इज एन एजेंट. स्टेट ये जो है वो हायर अथॉरिटी जो है, उसके अंदर गवर्नमेंट ये जो है एजेंट है. एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स यू शुड इमेजिन. विदाउट इमेजिनेशन यू कैनॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्टेट. गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है? एक्सटर्नलाइज द विल ऑफ द स्टेट. इट इज एन एजेंट. Why we form? Because the will of the state, it should be carried out whatever the will of the people, to control or to form any kind of rule and regulations according to the will of the state बोलो उसको आप, या will of the people, cannot exist without the government. ये दोनों का भी एक इंपॉर्टेंट है, कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट द गवर्नमेंट. ये कितना बढ़िया है. कैन एग्जिस्ट विदाउट द स्टेट. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट, स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट हायर अथॉरिटी, उसके अंदर ही गवर्नमेंट से रिलेटेड अपन ने डिस्कस किया था. बट जब अब यहाँ पे आ रहे हैं तो अपन कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट द गवर्नमेंट मीन्स स्टेट का, यदि स्टेट का फॉर्मेशन ही उसका एलिमेंट एक इंपॉर्टेंट कौन सा है तो गवर्नमेंट है. कैन एग्जिस्ट विदाउट अ स्टेट. अभी ये समझने वाली चीज कौन सी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट? जैसा इंडिया के बारे में, इंडिया का ही एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि बिफोर 1947 जो इंडिया है वो स्टेट था क्या? तो इंडिया was not the state according to that particular definition, because the whatever the government, we see that it was not formed by our people. Britisher came and formed their government. That is what we see that can exist without the state. इसलिए यहाँ पे ये आया है can exist without a state. हालांकि इंडिया was not the state as far as the according to the definition, but we can see that the government without state, ब्रिटिशर्स जो थे उनके कारण अपन गवर्नमेंट देख सकते हैं. इसलिए ये समझ लेना जरूरी है कि कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट द गवर्नमेंट. यदि कोई स्टेट, किसी को स्टेट यदि कहना है आपको, तो अपन ने जो एलिमेंट्स देखे हैं, पीपल, टेरिटरीज, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, वो चारों भी एलिमेंट इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन और द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट. बट इफ यू वांट टू फॉर्म गवर्नमेंट, देयर शुड नॉट बी नीड एनी काइंड ऑफ स्टेट. आप जाओ, जैसे अपन बिफोर 1945, आप सबको एक हिस्ट्री पता है कि क्या है हिस्ट्री. तो हिस्ट्री में अपन ने सब लोगों ने देखा है कि ब्रिटिशर्स का मैक्सिमम, इसमें ब्रिटिशर्स लोगों का मैक्सिमम ये जो है इंटरफेरेंस हर एक चीज में अपन ने देखा है. इसलिए ये
समझ लेना जरूरी है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना, ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में। कैनॉट बी चेंज सो लॉन्ग एज द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इसको इसमें अपन चेंजेस नहीं कर सकते जब तक एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे कैन बी चेंज्ड मीन्स यू कैन शिफ्ट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इनटू द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट into the communist government. You can shift government, but you cannot be change. यानी भारत जैसा है, वो आपको जब तक ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती। यदि ये चारों भी एलिमेंट है तो वो इंडिया ही है। हाँ, वो चारों में से कोई यदि प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कहाँ पे, तो यस डेफिनेटली इट कैन बी चेंज्ड, बट गवर्नमेंट में इट कैन बी चेंज। क्यों? क्योंकि उसमें वो फॉर्म जो है, जैसे मैंने अभी वो फॉर्म्स अब आगे जाके देखने वाले हैं, तो ये इसमें का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टेट वर्सेस नेशन, स्टेट एंड नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है नेशन, ये इथनिक कंसेप्ट है, मीन्स रिलेटेड टू द योर इमोशंस, and state it is a legal or political concept। अभी इसका थोड़ा सा अपन और जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टेट में जैसा अपन ने डेफिनेशन में बोला है कि मोर और लेस पीपल परमानेंटली ऑक्यूपाइंग पर्टिकुलर टेरिटरी, मोर और लेस पीपल बोला है। तो ये जो मोर और लेस पीपल जो है वो परमानेंटली ऑक्यूपाइंग पर्टिकुलर टेरिटरी, if they are living in that particular living on that particular territory, when they form, when they thought that to create the state, यदि वो कल्चरली लिंग्विस्टिकली बोलो या पर्टिकुलर रिलीजियसली बोलो, और if they connected each other, definitely then they think that they should have particular state। तो ये जो नेशन जो है वो एक इथनिक कंसेप्ट है, वो है रिलेटेड टू द इमोशन। जैसे अपन बोलते हैं ना कि डाइवर्सिटी जो है इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो डाइवर्सिटी में भी अपन बहुत सारी चीजें अपनी जो है वो कहीं ना कहीं मैच होती है। इसलिए आप इंडिया में कहीं पे भी जाते हो, एज कंपेयर टू द फॉरेन कंट्री, यू विल फील मोर सिक्योर देन फॉरेन कंट्री। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपन इमोशनली उस नेशन से बोलो, इमोशनली उस पर्टिकुलर टेरिटरी से, वहां के जितने भी पीपल है उनसे इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं, कल्चरली कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं, रिचुअल्स कहीं ना कहीं अपने सेम रहते हैं। इसलिए जब अपन बोलते हैं नेशनलिज्म, मीन्स आवर नेशन is the supreme, we are the supreme, no one is above and no one can control us. This kind of feeling, if I feel and I work for that, then so many people or thinkers said me that you are the nationalist. So free from external control, state may or may not be free from external control. This ethnic concept may or may not be free. It can be free, but it cannot be free. It may not be free. Means sometimes if you are doing some kind of feelings in India, may be supported by external, may be supported, may not be or may be। इसलिए बहुत बार देखो ना, अपने यहाँ की जो कुछ कुछ मूवमेंट्स चलते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि कोई बाहर का सपोर्ट कर रहा है क्या। तो जो भी कंसेप्ट इथनिक बोलो, जो इमोशन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट रहती है, मे बी सपोर्टेड और मे नॉट बी सपोर्टेड,
or may be free or may not be free from external control. One state may consist of one or more nations. एक ही इसमें बहुत सारे नेशंस, इथनिक कंसेप्ट है, इतनी ख्याल में रखो, मोर और वन और मोर नेशंस। तो यहाँ पे बहुत सारे वो जो नेशनलिस्ट जिसको बोलते हैं अपन, जैसे अपन इंडिया में अपन जैसे बिफोर 1945 या बिफोर 1947 वहां पे देखो ना अपन सब साथ में रह रहे थे, बट देर आर टू नेशनलिस्ट theories we found in that before the independence of India. That's why we see that after the in 1947 Pakistan and India were created. Why they created? Because before 1947 two ideologies, one thought that the Muslims should be created their own state, and another, some people thought that they should be created only a free nation. ये जो अपन दोनों भी नेशनलिज्म ही है, ऐसा नहीं कि वो दोनों नेशनल, इसलिए 1947 में आपने को वो क्रिएट किया गया यहाँ पर पाकिस्तान और भारत. वन नेशन मे बी मेड अप ऑफ सेवरल स्टेट. वन नेशन मे बी मेड अप ऑफ सेवरल स्टेट. ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि सो मेनी यू कैन, ये जो आपकी डेफिनेटली ये जो है एक प्रकार की आपकी क्या बोलते, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इथनिक कंसेप्ट है नेशनलिज्म या नेशन. तो यदि ये आपके दिमाग में घुस गया और उसके आधार पे यदि आपने कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो ये डेफिनेटली यही एक कंसेप्ट बहुत सारी स्टेट के ऊपर बहुत सारे स्टेट्स क्रिएट भी कर सकते हैं और बहुत सारी स्टेट के ऊपर कंट्रोल भी वो कर सकते हैं. इसके साथ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एज टू द नंबर ऑफ द पर्सन्स एक्सरसाइजिंग सोवरेन पावर. ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किसके आधार पे अपन देखते हैं कि कितने लोग, जो हाईएस्ट जो सोवरेन पावर है वो कितने लोगों के हाथ में है. मोनार्की, the supreme and final authority is in the hands of a single person. It is further classified into absolute monarchy and limited monarchy. Means everything should be controlled by only one. It is called monarchy, but monarchy is the good form of the government. Dictatorship is not the good form of the government. Although we see that the supreme and final authority is in the hands of only single person, but that single person use his power for his own interest. That's why we say that the dictatorship is not the good form of the government, but the monarchy is the good form of the government. Further, we can also classify monarchy, absolute monarchy, means no one is above, no one can be controlled, or limited monarchy means there should be some of the limitation on the authority of that monarch. Second, aristocracy. The political power is exercised by the few privileged class. It is the good form of the government. Why good? Why we say that it is good? Because all these peoples work for the benefit of the society. That's why it is a good form of the government. Democracy. The political power is exercised by the majority of the people
it is further classified into two: direct or pure democracy and indirect or representative democracy. The political power exercised by the majority of the people. It is called democracy. There are another further two parts: direct or pure, where we see direct democracy in Swiss only, Switzerland. Some of the portion of the Switzerland, we can see that they exercise direct democracy pattern. Direct democracy means kya? People elect their representative directly, not indirectly. What we do, we elect our representative indirectly. Why indirectly? I am saying that because we voted, and to whom we vote, no one knows. That's why it is indirect. But in direct democracy, the representative, all the representatives aware about the person who vote to that particular representative. यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सब कुछ दिखता है. जैसे मैंने आपको क्लास में बोला कि 50 लोग बैठो और उसमें से एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव रखो, तो उसमें से 30 लोगों ने किसी एक को सपोर्ट किया, 20 ने किसी अलग को सपोर्ट किया, तो दोनों को भी वो पता चलेगा किसने किसको वोट किया है. ये चीज डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में नहीं होती. इसलिए मैंने आपको बोला, अपन जो वोटिंग करते हैं वो पर्टिकुलर कमरे में जाके एक वहां पे कुछ हाइड मशीन रहती है, वो भी हाइड की हुई रहती है, और आपने किसको वोट किया है नो वन नोज. तो इसलिए बोलते कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के भी होंगे, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उनको किन्होंने वोटिंग किया, किन्होंने नहीं किया, डजेंट मैटर, क्योंकि अपने आप ही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. उसके बाद एज टू द नेचर ऑफ टेन्योर ऑफ द ऑफिशियल, एक जो रहता है नेचर कैसा है उसका, उसके आधार पे भी अपन गवर्नमेंट देख सकते हैं. हेरिडेटरी पावर एंड अथॉरिटीज पास ऑन टू द वन हु इज रिलेटिव बाय कॉन्सिग्यूटी. वो जो है वो अपन ये देखते हैं, जहाँ पे सपोज ब्रिटिश में जो अपन क्वीन वगैरह जो देखते हैं ना, वो सब यहाँ पे हेरिडेटरी है. मैं, मेरा लड़का, या मैं भी आया हूँ तो मेरे पिताजी के कारण आया हूँ, इसी से. लेकिन ये इन पर्टिकुलर ब्रिटिशर्स के यहीं पे आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी स्टिल जो मोनार्की है वो अभी भी स्टिल वी कैन सी दैट, वी कैन सी थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन British political system: monarchy, aristocracy, and democracy. All these three forms we can see in British political system. सिर्फ ये ख्याल में रखो, जब पढ़ना है आगे तब अपन बाद में डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है ये सब. इलेक्टिव और पॉपुलर, लीडर इज चूजन बाय एन इलेक्टोरल प्रोसेस. इट इज इजी. As to the extent of powers exercised by the central or national government: unitary government, federal government. Unitary means if all powers centralized or controlled by the only central government. It is we can see that the unitary government. British political government, it is a unitary government, means everything controlled by only, there is no two governments. We cannot see that the state government or central government. Every power utilized by only the central, only one government. It is called unitary government. The control of national and local affairs is exercised by the central or national government. Federal government: the powers of government are divided between the two sets of organs, one for national affairs and the other for local affairs. What we see in India like that there we can see that the state government and central government. That's why we say that the federal government is the characteristics of Indian political system. Why we say that?
we see that there is a division of power between the two governments, state government and central government. Central government engage always to deal with the national affairs, and state government always engage to deal with the local affairs. As to the relationship between the executive and the legislative branches of government, parliamentary and presidential, ये रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव मीन्स द बॉडी विच इंप्लीमेंट द लॉ एंड लेजिस्लेटिव मीन्स विद द बॉडी विच क्रिएट्स अ लॉ. जो अपन जैसे अपन बोलते हैं ना विधिमंडल और कार्यकारी मंडल. एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यकारी कि जो जिनकी तरफ इंप्लीमेंटेशन की सब पावर्स रहती है, कि इनका रिलेशनशिप कैसा है, इसके आधार पे अनदर टू फॉर्म्स अपने को दिखाई पड़ते हैं. वो है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल. द स्टेट कन्फर्स अपॉन द लेजिस्लेचर द पावर टू टर्मिनेट द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द रियल एग्जीक्यूटिव. पार्लियामेंट्री में ये रहता है इंपॉर्टेंट. द स्टेट कन्फर्स अपॉन, यहाँ पे स्टेट का डेफिनेशन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन. confers means given upon the legislature the power. कॉन्स्टिट्यूशन से वो पावर मिला है लेजिस्लेचर को. दे कैन टर्मिनेट और दे कैन टर्मिनेट द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द रियल एग्जीक्यूटिव. जैसे अपन बोलते हैं ना, अपने प्राइम मिनिस्टर का जो एग्जिस्टेंस है वो लेजिस्लेचर के ऊपर है. जब तक उनकी मेजोरिटी लेजिस्लेचर में है तब तक वो है, और लेजिस्लेचर हैज द पावर. उनके पास पावर है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं. यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गई तो एग्जीक्यूटिव फिनिश हो जाता है. तो इसलिए जहां पर लेजिस्लेचर का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहता है वह उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री. मींस व्हेन executive is responsible towards legislature, it is called parliamentary government. Another presidential, the state makes the executive constitutionally independent of the legislative. प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे कुछ पावर डिवाइड किए हैं कि जिससे एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंटली अलग है, और किससे अलग है? लेजिस्लेचर से. इसलिए आप अमेरिका में देखोगे कि वहां का जो प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर फिक्स है. वो ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर. बट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम वी सी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, ऑल्दो he is the head of the executive. He cannot be a head of the executive without member of legislature. ये बहुत important चीज है. But in presidential system we see that the person who is the head of the executive cannot be a member of the legislature. थैंक यू वेरी मच. इससे रिलेटेड कोई किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं. सर एलिमेंट्स ऑफ स्टेटचं जर टेरिटरी ते समजलं नाही थोडंसं. ये टेरिटरी फिक्स पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. मीन ऐसा नहीं कि आप आज यहाँ पे रह रहे हो, कल और जाके कहीं जाके, सपोज आज यहाँ पे इंडिया में हो, यहां से निकल के और कल कहीं और टेरिटरी में जाओगे. यदि आप फिक्स पोर्शन पे पर्टिकुलर आप सरफेस पे यदि आप परमानेंटली रिसाइड नहीं कर रहे हो तो वहां पे स्टेट नहीं क्रिएट हो सकता है. देखो अपन ये क्योंकि ये सब चीजें इमोशंस से ज्यादा रिलेटेड है. टेरिटरी में जैसे अपन इंडिया में अपन बोलते हैं कि अपने इमोशंस भी इस टेरिटरी से फिक्स्ड है. अपन परमानेंटली अपने एंसेस्टर यहीं पे रहते हुए आए हैं.
वो कहीं और नहीं गए। और दैट्स वाई वी फील, क्योंकि वो फीलिंग है, ख्याल में रखो। क्यों परमानेंसी होना वहां पर, फिक्स रहने का आपको क्यों बोल रहा हूं मैं, कि तभी आपको फीलिंग रहती है, वो फीलिंग क्रिएट होती है कि नहीं वी शुड क्रिएट गवर्नमेंट, एंड दैट गवर्नमेंट शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। तभी वो फीलिंग्स आती है, अदरवाइज वो फीलिंग नहीं आ सकती। देखो ना आप, जैसे आप जो घर में अभी आप रह रहे हो, आपका खुद का जो घर है, वहां का फीलिंग आपका अलग है। आप जब होटल में जाके रहते हो तब फीलिंग अलग रहती है। इसलिए वो टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि कोई भी लोग फॉरेन में, आज बहुत सारे लोग फॉरेन में जाके एक स्टेप यानी वहां पे जाके रह रहे हैं, बट दे स्टिल फील रिलेटेड टू देयर ओन नेशन, डिफरेंट फीलिंग्स, ऑलवेज फील दैट वहां पे ठीक है हम रह रहे, लेकिन कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अपने जो जो उनकी मदरलैंड है उनकी तरफ उनका वो बहुत ज्यादा जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि वो फीलिंग्स ही वैसी रहती है। तो ये टेरिटरी भी एक फिक्स पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द पीपल। ये इतने 4 पार्ट है तो ही आप स्टेट क्रिएट सकते, स्टेट जो है वो क्रिएट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ओके सर। हाँ ठीक है, मैं शाम अभी रात को मैं एक क्विज भेज देता हूँ, वो गूगल फॉर्म्स कल के से रिलेटेड जो है वो आज भेज देता हूँ, और आज से रिलेटेड रहेगा वो कल भेज दूंगा। आप सब लोग सॉल्व कर लो और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा उसके साथ ही। ठीक है, ठीक है। चलो। ओके सर।